Bismillahirrahmanirrahim, dear students. We did Lagrange equation from D'Alembert principle, and now we are going to derive Lagrange equation from Himilton principle. Now we know that according to Himilton principle, delta integral of t1 t2 L dt is equal to 0. And this integral is action integral, because in this case we see that delta I, this is equal to delta integral t1 t2 L dt, this is equal to 0. In calculus, the variation in minimum or maxima, that is equal to 0. Now we take the Lagrangian. Here L stands for Lagrangian. L stands for Lagrangian. Lagrangian is the function of generalized displacement, generalized velocity and time. L is equal to L into Q dot J and T. It means that L is a function of generalized displacement, generalized velocity and time. So in case of variation, we can write as delta L is equal to delta L divided by del Qj into del Qj plus delta L divided by del Q dot J into del Q dot J plus delta L divided by del T into del T. Now we see that in case of conservative system, Lagrangian does not depend upon time, but Lagrangian is basically, you see, it is independent of time t, so this term goes to 0. Delta L divided by delta t is equal to 0, this term goes to 0. So we have delta L is equal to delta L divided by del Qj into del Qj plus delta L divided by del Q dot J into del Q dot J, ये term जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Now integrating from t1 to t2, where t1 is initial time and t2 is the final time, both the time are fixed. Integrating from t1 to t2, the above equation. So integral of t1 to t2 delta L dt will be equal to integral of t1 to t2 delta L divided by del Qj into del Qj plus integral delta L divided by del Q dot J into del Q dot J into dt. This equation, we are integrating basically this equation from time interval t1 to t2. Now taking the second term of this equation, इसको ले लें. The second term of this equation जो है, यानी आपके पास ये ले लें, तो ये आपके पास आ रहा है t1 t2 डेल्टा L डिवाइड बाई डेल Q डॉट J इनटू डेल Q डॉट J. ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है सपोज, और ये आपके पास क्या है, सेकंड फंक्शन है. तो इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन डेल L डिवाइड बाय डेल Q डॉट J, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन इन t1 t2 डेल Q डॉट J इनटू dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसकी वो ले लें डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल Q डॉट J इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन t1 to t2 del Q डॉट J डिवाइडेड बाई t1 to t2 del Q dot J dot dt into dt. In this, we are taking this term and we are integrating by parts. Here you see, if you take this term,
this is the first function and this is the second function. If you integrate it by parts, then we see that integral of first function into integral of second function, first function into integral of second function minus integral differential of derivative of the first function into integral of a second function. So this becomes delta L divided by del Q dot J, this equation, integral T1 to T2 d by dt del Qj into dt minus integral, the second one is in T1 T2 d by dt of del L divided by del Q dot J into T1 T2 d by dt of del Qj dt into dt. अब ये किस तरह होगा इसी का, तो यह आ जाएगा डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटीग्रल T1 T2 डी, ये कैंसिल हो जाएगा, डी इंटू डेल क्यू जे माइनस इंटीग्रल T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू इंटीग्रल T1 टू T2, ये कैंसिल हो जाएगा डी डेल क्यू जे इंटू डी टी. अब अगर इसका इंटीग्रल ले लें T1 T2 चूँकि फिक्स है तो ये इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. तो 0 माइनस इंटीग्रल T1 टू T2 ये डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे इंटू डी टी. दिस इज इक्वेशन थर्ड. देखिए हमने इसको बाई पार्ट्स ये इंटीग्रेट किया, इसका सेकंड टर्म इसकी बिल्कुल निकाल करके फिर हमने 2 में डालना है. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. अब इसी वैल्यू को हमने कहाँ डालना है, इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल T1 T2 डेल एल डी टी दिस इज इक्वल टू T1 T2 डेल एल ओवर डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे, और ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे इंटू डी टी हमारे पास ये आ जाएगा T1 टू T2, और ये टर्म हमारे पास आ जाएगा T1 T2 डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे डी टी माइनस ये भी डी टी इसके साथ होगा माइनस इंटीग्रल T1 T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे डी टी. अब डेल्टा आई जो है वेरिएशन ऑफ आई दैट इज एक्शन इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू तो 0 के बराबर है, तो इसलिए हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू T1 टू T2 डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे डी टी, और ये आपस में ये कैंसिल हो जाएगा. या आप इसको ये लिख सकते हैं T1 टू T2 डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू जे डॉट डी टी इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट T1 टू T2 क्यू जे डी टी इज इक्वल टू 0 डेल क्यू जे. लेकिन अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इससे मुराद ये है कि ये 0 के बराबर है, ये टर्म 0 के बराबर है. तो आपके पास आ जाएगा डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे माइनस डी बाई डी टी अब डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू 0. यानी इंटीग्रल जो है T1 टू T2 क्यू जे डी टी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता. अगर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इससे मुराद है कि ये टर्म 0 है, क्योंकि ओवरऑल ये 0 के बराबर है. तो डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू 0. तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको आगे ले जाएं, इसको पीछे ले जाएं. तो डी बाई डी टी इंटू डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0. ये आपके पास क्या है, आइलर लेग्रेंज इक्वेशन. आइलर ने चूँकि इस पे काम किया था तो इसलिए इसका नाम है आइलर लेग्रेंज इक्वेशन. तो मुराद क्या हुआ कि जिस तरीके से लेग्रेंज इक्वेशन जो है उसकी मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमने ली, फिर उसकी इंटीग्रल ले ली, उससे हमने हैमिल्टन को डिराइव किया. हैमिल्टन
अब हम हैमिल्टन से बेक क्या डिराइव करने जा रहे हैं, लैग्रेंज इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल तो हमारे पास T1 T2 L dt इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, L जो है जो कि लैग्रेंजियन है उसका हमने फंक्शन लेना है इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी इन टाइम। इसलिए हमने इससे पहले लिखा था कि L इज इक्वल टू L इंटू क्यू डॉट व T। फिर उसकी हमने वेरिएशन ले ली, डेल L ले लिया। तो वहाँ हमने देखा कि चूँकि टाइम जो है वो लैग्रेंज को क्या है, इंडिपेंडेंट पड़ता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए इसका जो टर्म था डेल L डिवाइड बाई डेल T इंटू डेल T उसको 0 के बराबर ले लिया। फिर हमारे पास जो इक्वेशन रह गया वो सिर्फ डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू जे इंटू डेल क्यू जे प्लस डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इंटू डेल क्यू डॉट जे हमारे पास रहा। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 डेल L dt, ये भी इंटीग्रेट हुआ, ये भी इंटीग्रेट हुआ। फिर हमने सेकंड टर्म ले ली और इस सेकंड टर्म को हमने बाई पार्ट्स कर दिया। फर्स्ट इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। तो इससे कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास चूँकि ये वेरिएशन जो है डेल्टा L में जो वेरिएशन आ रही है लीस्ट एक्शन में, जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की जो वेरिएशन है कैलकुलस में 0 के बराबर है, तो उसको हमने क्या लिया, 0 के बराबर लिया। और 0 के बराबर लेने के बाद हमने वो इक्वेशन को डिराइव किया, वो डिराइव डी बाई डी टी ऑफ डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल L डिवाइड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। चूँकि इस पे आइलर ने काम किया था तो इसलिए एक नाम इसका ये भी है, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। थैंक्स।